Hello, welcome to the e-learning platform, an initiative by Science Park Savitribai Phule Pune University, the second part and the last part of Maps, Our Companions for chapter number 9 from SSC board for standard 5. Topics for today: methods of showing elevation or height, then different maps, then drawing contour map. Do you know, while drawing the map or any landform on that map on a paper, it is easy to have the length and width measurement, but it's not so easy to show the height and depth. Hence, there are different methods of showing elevation and height of the land. One of them is contour line method. Second is layer tinting method. Third is digital elevation method. चलो देखते हैं कंटूर लाइन मेथड क्या है. Okay, let us start to understand. This method is basically used to show the unevenness of landforms on a map. This is how it looks. Now can you see here the yellow such kind of peaks? So those are, let us say, hills. So if we want to show the height of that, then let us see the procedure for that. Okay. Have you ever measured the height? Yes, you have measured. So जब आप height measure करते हो तो reference line क्या रहती है? आप floor पे खड़े रहते हो. That is the base of that. Similarly, landforms की height measure करने के लिए sea level consider करते हैं. So height of land is measured from sea level. Okay. Then let us understand another example. आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं, जो भी आप फ्रेंड्स हो, let us consider all are of same height. Okay. So उसका एक टेबल बनाओ नाम से और वो हाइट वहाँ पे लिख दो. Similarly, in our contour line method, points of same height are first need to be noted. Okay. Then the positions of such heights are marked properly on the map. Then these locations are joined with a line, that is contour lines. If you see here, if we are trying to note down such lines, this is the peak and these are the values or heights from sea level. So if we are drawing such horizontal lines along this height, then whatever the intersection, what is the meaning of intersection? जहाँ पे भी ये लाइन टच करती है ये बाउंड्री को, वहाँ से हम नीचे लाएंगे. वो नीचे जो लाइन लाएंगे वो पूरी एक लाइन में लाएंगे. ओके. अब ये जो पॉइंट्स है पूरे सेम हाइट के हमें मिल जाएंगे ऐसे करके. देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ये नीचे लेके आए तो यहाँ एक मिला, यहाँ एक मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सर्कल्स ड्रॉ करते जाएंगे. ओके. अब ये दो पिक्स ज्वाइन हो चुके हैं तो इसके बीच में हम लोग यह ऐसे बनाएंगे. ठीक है. Now in the map, the lines are drawn, each joining the places of a specific height. In this way, the relief of land can be easily shown. It helps us to understand the slope of the land and height of different places. Let us see second method, that is layer tinting method. रंग पद्धति से ये नक्शे बनाए जाते हैं. इसका बेस जो है वो कंटूर लाइन्स ही है. कंटूर लाइन्स ड्रॉ करते हैं और बीच में कलर भर देते हैं. ओके. अब ये नक्शा अगर हम देखें तो ये राइट साइड में जो है वहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन उसके हिसाब से हाइट दिखाई दी गई है. अगर पहला बॉक्स हम कंसिडर करें, दैट इज ग्रीन, which is ranging from 0 to 258, and if we say maximum, that is extreme red color, that is 5006 to 8238. So that is the peak of that.
Okay, so in this method the spaces in contour lines are basically filled with colors and each color indicates the specific height. This is digital elevation method. Elevation meaning उठाव, जहाँ से उठा हुआ दिखता है वो. जैसे हमने पहले मैप में देखा, ये है डार्क कलर, यहाँ पे भी है डार्क कलर, है ना. तो इसका मतलब ये सबसे ऊंचाई पे है. सबसे नीचे कहाँ है? ब्लू. ब्लू इज नियर सी लेवल और वाटर बॉडी, लेट अस से. ओके, in this method the information is obtained through man-made satellites. जो सैटेलाइट्स बेस्ड है ना, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है और वो डेटा कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं और फिर ये ऐसे मैप्स हम लोग बना सकते हैं. अभी मैप्स बनाने की और एक मॉडर्न टेक्निक है, दैट इज हिल शेडिंग टेक्निक. जैसे हमने पहले देखा कलर कॉम्बिनेशन से हाइट बताई गई थी, लेकिन अभी हिली एरिया में कौन से वो ज़्यादा ऊपर है कौन से नीचे है वो बताने के लिए उसको शेडिंग किया जाता है. जैसे आप ड्राइंग में शेडिंग करते हो ना, वैसे ही. अभी ये अलग अलग मेथड तो हमने देख लिए कि मैप आजकल के कैसे बनाते हैं. हियर आर टाइप्स ऑफ मैप्स. वन इज फिजिकल. जैसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल बाउंड्रीज होते हैं. सो दिस इज वी से इंडिया, हियर इट इज चाइना. सो ऐसे ही जो फिजिकल बाउंड्रीज जहाँ पे दिखाई जाती है वो इसे दोज आर फिजिकल मैप्स, भौतिक मैप्स. ये है पॉलिटिकल. पॉलिटिकल मीनिंग अब इंडिया के अंदर अलग अलग ये जो स्टेट्स है वो दिखाए जाते हैं. तो इस स्टेट का कोई और एक देखेगा, ये स्टेट का और एक देखेगा. तो ये जो बाउंड्रीज है वो बोली जाती है पॉलिटिकल और राजकीय नक्शे. अगर लेफ्ट साइड में देखो तो दैट इज क्लाइमेटिक. आप लोग न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ में दिखाए जाते हैं वो जो एयर है वो यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है, वो कैसे है, क्या है, उसका जोर कितना है, ये सब ऐसे कलर कोड में दिखाए जाते हैं और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं वो हम इजीली देख सकते हैं. एंड दिस इज ऑन द राइट साइड, इट इज रिलीफ मैप, दैट इज 3 डायमेंशनल ऑल्सो वी कैन से. इसको बोलते हैं रोड मैप, स्ट्रीट मैप. जैसे हम लोग रास्ते दिखाते हैं ना, अंदर की गली वगैरह, वैसे ही. और राइट साइड में नीचे है दैट इज टाइम जोन, कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ऐसे वर्टिकल लाइन से अलग अलग कलर में, उसको बोलते हैं वो जो टाइम जोन है वो सेम है. अभी भारत का टाइम जोन क्या है? हम लोग बोलते हैं कोलकाता 5:30 IST, है ना. तो वो रहा इंडिया का. अभी इंडिया का जो टाइम जोन है वो कहाँ कहाँ पे है? ये पूरे पैच में यहाँ पे रहेगा. यह है टोपोग्राफिकल, भौगोलिक. जैसे ऊंचाई वगैरह इसमें दिखाई जाती है, जो आगे जाके हम लोग देखने वाले हैं कंटूर मैप में. अब देखते हैं कंटूर लाइन मेथड. ये क्या है? यस, आप लोग ये ड्रॉ करने वाले हो. ओके, दैट विल बी रियल फन. यू विल अंडरस्टैंड समथिंग न्यू. तो ये कैसे बनाई जाती है, क्या है, ये थोड़ा सा देख लेंगे तो समझने में आसानी होगी. सो लेट अस सी हियर हाउ दीज आर सीन. ओके, यहाँ पे ये एक हिली एरिया है. वहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा हमेशा यहाँ पे स्केल रहेगा हाइट की. हाइट के हिसाब से हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लिए. ओके, अब ये देखते हैं ये पद्धति से क्या क्या और कैसे कैसे दिखता है. दिस इज 1. ये ऐसी एक बड़ी सी हिल है, लेटस से. उसकी जो दिखती है वो ऐसे दिखेगी, ये राउंड जैसे दिख रही है ना यहाँ से, इसलिए ये ऑलमोस्ट राउंड दिखती है. और एक है, अभी यहाँ पे बीच में ऐसा प्लेन है तो ये प्लेन आएगा. यहाँ पे हिली एरिया है तो ये भी हिली एरिया आएगा. कैन यू सी दिस इज रिफ्लेक्टेड एज लाइक दिस. हियर वी हैव few more diagrams. okay, अब यहाँ पे है वो डबल हिल है, उसका कंटूर लाइन में कैसे दिखेगा? ऐसे. अब ये जो गैप आ गई है वो गैप यहाँ पे भी दिखती है. ऐसे बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स है. ओके, लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व किया तो एक रीजन में लाइंस बहुत नज़दीक आती है और एक रीजन में थोड़ा दूर दूर जाती है.
ओके तो यहाँ पे दिखते हैं ये ऐसा स्टीप है, जहाँ पे स्टीप होगा वहाँ पे वो एकदम करीब आती है। यहाँ पे हम लोग और ठीक से देख पाएंगे कंटूर लाइंस क्लोज कब आती है और दूर कब जाती है। ओके लेट अस सी हियर, these are far away, slope is gentle slope, or if slope is steep, those are coming closer. Okay, that means contour lines are drawn close together on steep ground and far apart on flat ground. अरे ये क्या है, ये तो आपका फेवरेट ड्राइंग है और फेवरेट गेम है। So what do you do in such kind of thing? You go on connecting the numbers or the dots representing numbers. So you will get complete picture of this. Newspaper में बहुत बार आता है, आपने खेला है, am I right? Yes, I know. Now I am going to give you one homework. Here it is. There are different numbers. Just looking at these numbers, एक काम करना है आपको, पेरेंट्स के हेल्प से एक प्लेन पेपर पे ऐसे डॉट्स बना लो, नंबर्स डाल दो, एंड देन यू आर गोइंग टू जॉइन ऑल दोज डॉट्स एंड देन टेल मी व्हाट डू यू सी हियर। लेट अस लर्न हाउ टू ड्रॉ कंटूर लाइंस, ओके, और कंटूर मैप। यस, आप लोग बनाने वाले हो। आई हैव सच काइंड ऑफ हिली एरिया। Okay, now you are going to make horizontal lines which are equidistant. उसके जो है दोनों के लाइन के बीच का डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। ओके अब ये लाइंस इस हिली एरिया में जहाँ पे भी पॉइंट में मिल रही है वहाँ से आपको वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पीक ऑफ दिस, देन उसके बाजू की, उसके नज़दीक, and go on like this, and you are going to complete from the right side and as well as from the left side. So after this what will you see? You will have a straight line at the center where all lines are coming down. You will just draw a point there, okay, and the central or the peak of this hill will be here. We draw big circle there, then next circle, then next circle, and go on. So you will able to complete such kind of contour, okay, which will be almost circular. Then you will observe that there is steep, so the lines are coming closer, and on the right side that is not exactly flat but not also steep, so lines are going away. Here is homework for you, okay, so you can have such kind of random peak, okay, and draw the contour lines. Make sure one side of contour line is uphill, another is downhill. Then if you just look at this contour line map, then you will observe such kind of circular lines, and just note down there the steep and gradual kind of region.